میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 15 جون کو صوبے کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کا بجٹ اجلاس 15 جون بروز پیر کو ہوگا۔ پنجاب حکومت نے تمام پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 15 جون کے اجلاس کے لیے لاہور پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام پی ٹی آئی اراکین بجٹ اجلاس میں اپنی شرکت ہر صورت یقینی بنائیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوان بخت بجٹ پیش کریں گے۔ صوبائی بجٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 15 جون کو صوبے کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری دی۔ پنجاب کا بجٹ اجلاس 15 جون بروز پیر کو ہوگا۔ پنجاب حکومت نے تمام پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو 15 جون کے اجلاس کے لیے لاہور پہنچنے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ارکان بجٹ اجلاس میں اپنی شرکت ہر صورت یقینی بنائیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوان بخت بجٹ پیش کریں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 15 جون کو صوبے کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کا بجٹ اجلاس 15 جون بروز پیر کو ہوگا۔ پنجاب حکومت نے تمام پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو 15 جون کے اجلاس کے لیے لاہور پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پنجاب میں نئے مالی سال کے لیے صوبائی سیلز ٹیکس کیا ہوگا؟ سٹی 41 نے نئے مالی سال میں سیلز ٹیکس کے حوالے سے اہم تفصیلات حاصل کر لی ہے۔ ریسٹورنٹس، بیوٹی پارلرز اور سیلون پر 16% سیلز ٹیکس برقرار رکھنے کی تجاویز زیر غور ہے۔ نئے مالی سال میں فائنانس بل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بنائی گئی آر ایم سی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق لوگوں کو سیلز ٹیکس میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ کمیٹی نے ریسٹورانٹ، بیوٹی پارلرز اور سیلون پر کیش کی صورت میں بل ادا کرنے پر 16% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں بجٹ کے حوالے سے پنجاب میں نئے مالی سال کے لیے صوبائی سیلز ٹیکس کیا ہوگا؟ سٹی 41 نے نئے مالی سال میں سیلز ٹیکس کے حوالے سے اہم تفصیلات حاصل کر لی۔ ریسٹورانٹ، بیوٹی پارلرز اور سیلون پر 16% سیلز ٹیکس برقرار رکھنے کی تجاویز زیر غور ہے۔ نئے مالی سال میں فائنانس بل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بنائی گئی آر ایم سی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق لوگوں کو سیلز ٹیکس میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ علی رامے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی، کیا توقع ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے؟ عام پبلک کا مطالبہ یہ ہے، خاص طور پر جو دکاندار ہے، کہ سیلز ٹیکس میں کمی کی جائے؟ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا کا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا تو اس پر تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ متعدد ایسے سیکٹرز ہیں جن کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ خسارے میں جا رہی تھی۔ اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ کم کر دیے جائیں، کچھ ٹیکسز کو معطل کیا گیا، اور اسی ایکسرسائز کو اب رد عمل کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ آئندہ نئی مالی سال میں جو فائنانس بل پیش کیا جاتا ہے پنجاب اسمبلی میں بجٹ کے ساتھ، جس میں سیلز ٹیکس کے حوالے سے مختلف جو شرح ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جہاں پر ٹیکس پہلے ختم کیا جا چکا ہے وہ ٹیکس ان کو ٹیکس میں شامل نہیں کیا جائے گا، ان کو ایگزیمپشن دی جائے گی، اور جہاں پہ ٹیکس جو 16% تھا اس کو ریڈیوس کر دیا جائے گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیلتھ سیکٹرز کے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، پرائیویٹ کلینک ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، جہاں پر ڈاکٹرز بیٹھ کے چیک کرتے ہیں مریضوں کو، ان کو فوری طور پر اسناد دینے کی تجویز دی گئی کہ ان پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس اضافہ تو نہیں کیا گیا، لیکن جو 16% ٹیکس پہ رواں مالی سال کے دوران ایک تجویز پرپوزل دی گئی تھی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال میں 16% جو ٹیکس ہے وہ آن کیش ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی کسٹمر ریسٹورنٹ میں جا کے، بیوٹی پارلرز پر، سلون پہ جا کر کوئی سروسز لیتا ہے تو وہ وہاں پر اگر کیش دے گا تو وہ 16% ٹیکس جو ہے وہ وہاں پہ اس کے مالکان کو پڑے گا، ریسٹورنٹ، بیوٹی پارلرز اور سلونز کے۔ اور اگر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو اس میں 5% جو ٹیکس ہے وہ تجویز دی گئی ہے، یعنی کہ آن لائن بینکنگ کو رجوع دیتے ہوئے یہ شہریوں کے لیے ایک نئی سہولت دی ہے کہ اگر وہ آن لائن بینکنگ کارڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو اس پر ان کو یہ ٹیکس کی شرح ان کے لیے مزید کم ہوگی۔ اور دوسری طرف شادی ہاؤس ہیں، مارکیز ہے، شامیانے لگانے والے ہیں، اور جم ہے، فٹنس کلب ہے، جتنے بھی دیگر سیکٹر جس میں آتے ہیں، خاص طور پر پراپرٹی ڈیلرز آ رہے ہیں، کار ڈیلر آ رہے ہیں، آٹو موبائلز آ رہے ہیں، تو ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح جو پہلے 10 سے 16% تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اب کم کر دی گئی، وہ 5% رکھی گئی ہے۔ تو اس پر شہریوں کی طرف سے تو یہی، جو کاروباری حضرات ہیں ان کی طرف سے تو یہی ڈیمانڈ کی گئی تھی پنجاب حکومت سے کہ نئے مالی سال میں ان کو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔
لیکن پنجاب حکومت نے ٹیکسز سے چھوٹ تو نہیں دی، لیکن ٹیکس کی شرح میں کمی ضرور کی ہے، اور کمی کے حوالے سے جو پرپوزل چل رہی ہیں، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے یہ سفارشات تیار کر کے ایوان وزیر اعلیٰ کو یہ پرپوزل بھیج دی ہے۔ اب یہ جو کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہوگا 15 جون کو، اس میں اس کی منظوری متوقع ہے۔ جی علی رامے، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ علی رامے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے نقد کیش کی صورت میں 16% سیلز ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر آن لائن ٹرانزیکشن ہوگی تو پھر اس پر 5% ٹیکس عائد ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی نے مالی سال 2020-21 کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کی بجٹ سفارشات کی منظوری دے دی۔ رپورٹ دیکھیں جہانگیر اشرف کی۔ یونیورسٹی فیصل آباد میں فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کا اجلاس وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کی زیر صدارت ہوا، جس میں مالی سال 2020-21 کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کی بجٹ سفارشات کو سنڈیکیٹ میں پیش کرنے کے لیے منظور کر لیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے 2 ارب روپے سالانہ گرانٹ، حکومت سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3 ارب روپے، فنڈنگ ایجنسیوں سے ریسرچ گرانٹ کی مد میں 3 ارب روپے اور یونیورسٹی کی اپنی آمدن 2 ارب روپے بجٹ تجاویز میں شامل ہیں۔ بجٹ سفارشات میں واٹر مینجمنٹ ریسرچ سینٹر کے لیے 45.96 ملین روپے، اورک ڈپارٹمنٹ کے لیے 19.88 ملین روپے، اسٹوڈنٹس فائنینشیل ایڈ کے لیے 11.28 ملین روپے اور ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس کے لیے 12.78 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ وفاق سے پاک کوریا ہائی ٹیک ایگریکلچر انوویشن سینٹر، نیوٹریشن سینٹر اور سیڈ پروڈکشن سینٹر کا منصوبہ، جبکہ پنجاب حکومت سے ٹی ڈی دل میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اسمال ایگریکلچر امپلیمنٹ کا منصوبہ مانگا گیا ہے۔ ہاسٹلز، اقبال آڈیٹوریم اور مرکزی راہداری کی مرمت کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ یونیورسٹی کے 30,000 میں سے 7,000 طلبہ کو فائنینشیل اسسٹنٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی کا پینشن انڈومنٹ فنڈ 1.5 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ٹریجرر عمر سعید قادری نے گزشتہ مالی سال کی آمدن اور اخراجات کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا۔ اجلاس میں ایچ ای سی کے ڈائریکٹر اکاؤنٹ سید سمر سبتین، ڈپٹی سیکرٹری ایگریکلچر نعیم خالد، ڈاکٹر ناصر آوان، ڈائریکٹر آڈٹ کل فراز منہاس، پروفیسر ڈاکٹر عبد الواحد، پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد رنداوا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عرفان عباس اور صدر انجمن اساتذہ ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اب کچھ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے تو فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 114 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں میں مزید 10 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3178 ہو گئی۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 114 افراد کی کرونا وائرس رپورٹ پازیٹیو آ گئی، جس کے بعد ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3178 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 10 ڈاکٹرز بھی کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹرز کی تعداد 254 ہو گئی ہے۔ متاثر ہونے والے 3178 افراد میں بیرون ملک سے واپس آنے والے شہری، زائرین، تبلیغی اراکین اور میڈیکل کا عملہ شامل ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو پبلک مقامات پر نہ جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کیمرامین قمر بھوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے میڈیکل آفیسرز کو آکسیجن خریدنے کی ہدایت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں 10 بیڈز مختص کیے گئے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے میڈیکل آفیسرز کو آکسیجن خریدنے کی ہدایات جاری کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں 10 بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو علاج کی سہولیت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ جی بالکل، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری کی جانب سے بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروس کی جانب سے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے وہ آکسیجن
खरीदने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो डिज़ीज़ है उसका पैटर्न डिफरेंट आ रहा है। पहले बड़े शहरों के अंदर इसी तरह जो दूसरे शहर हैं कोई एक हफ़्ता पीछे जा रहा है, कोई 2 हफ्ते पीछे जा रहा है, लेकिन ये है कि हर जगह के ऊपर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो आएंगे और डेफिनेटली ये जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उस सिलसिले में ऑलरेडी हमने अपने THQ हॉस्पिटल्स में 10-10 बेड जो हैं वो मुख्तस किए हुए हैं कोरोना के जो भी कोविड के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन है कि ऐसे मरीज़ जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करती है उनको बर वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। नॉर्मली हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिलेंडर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि सिलेंडर्स के अंदर मिकदार थोड़ी होती है तो ये डिसाइड किया हमने आज एक मीटिंग में कि हम कोशिश करें कि जो हमारे जितने THQs हैं उनके अंदर ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी करें। उस सिलसिले में हम अपनी जो है वो सिफारिशात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भिजवा रहे हैं और उस सिलसिले में जब नया बजट आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमें एलोकेशन हो इस बजट की कि जिसमें हम जो है अपने तमाम THQs के अंदर जो ऑक्सीजन के टैंक्स हैं उनको तनसीब करवा सकें। हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीजन टैंक की जो है वो तनसीब कराई जा सके और इसके अलावा 10-10 बेड जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं ताकि जहाँ टीचिंग अस्पतालों में इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं तो वहीं पर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के मातहत है जो तहसील हेडक्वार्टर। जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिटी 41 हमेशा पेश रहा है। सिटी 41 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का एक क्लिप आगाही के लिए वायरल हो गया है। डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर और टीम न्यूज़ नाइट की काविश को सराहा गया। अवाम की जानिब से सिटी 41 की काविश को खूब सराहा गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिटी 41 हमेशा पेश रहा है। सिटी 41 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का एक क्लिप आगाही के लिए वायरल हो गया। डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर और टीम न्यूज़ नाइट की काविश को सराहा गया है। एक सवाल पूछना है सिर्फ इनसे। एक मिनट आप जा कर रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना है। आपने कहा मुझे कोरोना नजर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आप वादा करें आपने अलाइड हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में 4 घंटे गुजारने हैं मास्क के बगैर। ये डॉक्टर्स का चैलेंज है, जिसे कोरोना नहीं नजर आया वो हमारे पास आया, हम उसे कोरोना दिखाते हैं। जाओगे? बोलो जाओगे? यार भाईजान देखें आपकी आप बताओ जाओगे ना? आप इंतहाई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं और भाग भी रहे हैं। फिर कोरोना क्यों पहना? कोरोना देखिए ये तो आवाम को जिधर लगाते हैं किधर नहीं लगाओ भाई, पूरी दुनिया मार रही है। क्या कर रहे हो आप? जहालत की इंतहा होती है। 5 भी कहां पढ़ के आ गए हो? ये कोरोना देखें देखिए सर, आपकी बातें तो बैठ के आगे बढ़ेंगे। शनिवार से आपको अपडेट करें। एहसास किफालत प्रोग्राम भी गैर महफूज हकदारों की हक तलफी का सिलसिला सख्त कवायद और जवाबित भी न रोक सके। एक ही शख्स से दर्जनों शनाख्ती कार्ड्स बरामद हुए। अमला भी मुबैना मुलविस निकला। शनाख्ती कार्ड्स लेकर आने वाले शख्स ने खुद को DC ऑफिस का मुलाजिम जाहिर किया। एहसास किफालत अमले का मजीद कहना था कि मुलजिम ने सरकारी मुलाजिम जाहिर करने पर इसरार किया तो फिर हमने शनाख्ती कार्ड का स्टेटस चेक किया। आपको आगाह कर रहे हैं चिन्योर से, जहां एहसास किफालत प्रोग्राम पर भी गैर महफूज है। हकदारों की हक तलफी का सिलसिला सख्त कायदे जवाबित में भी ना रोक सके। कितू हो 151 जाकी चौक। ए कार्ड किदे ये जी मेरे पिंड दे। तेरे पिंड दे कार्ड हैं। ये तेरे हाथ ही किवें आ गए? उन्हें आख्या जी चेक करा। उन्हें आख्या चेक करा। तुसी की करके दे रहे आए भी? वो आए ने उन्हें चेक कर दे, मुलाजिम है, मैं ठीक है चेक कर दूं। अच्छा ए मशीन जेड़ी है ये किस वास्ते रखी हुई है? चेक करने वास्ते। चेक करने वास्ते रखी हुई है। ते इन्हां दे सारफ तू इन्हां कोल पुछया भी किदे हैं? कार्ड दे मालिक किदे हैं? ए स्काफ थल्ले करो अपना। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अली हसन साहब। अली हसन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 50 कार्ड ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ? फिर ਤੁਸੀਂ हरकत क्यों कर रहे हो? सर पता नहीं, मतलब तू क्यों कर रहे हैं? सेंटर के इंचार्ज कौन है? सर इधर आ जाए प्लीज, साइड पे हो जाओ। भी इन कार्डों को देखें, ये एक ही शख्स की जेब में कार्ड है ये सारे। ये क्या है, क्या हो रहा है? ये इस बारे में ब्रीफ करें हमें। ये सर हमें इस बारे कोई पता नहीं है। दूसरी ये कौन सा कहाँ से लेके आए हमें पता नहीं। ये आपका बंदा क्यों कर रहा है? चले आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें, इसको छोड़ दें, इसका बताएं कि ये क्यों कर रहा है। ये कहाँ से कार्ड आएंगे जी? ये भाई लेके आए हैं, कार्ड चेक करते हैं। आप किस बेस पे चेक कर रहे हैं? इन्होंने इनकार किया, कहना मैं मुलाजिम हूं, अच्छा मुलाजिम है। मुलाजिम खुदा का बच्चा होता है ना। मुलाजिम है जी, 1 मिनट, कहाँ के मुलाजिम?
तो डीसी ऑफिस में आपको उन्होंने ये कहा कि आप कार्ड चेक करवाएं? नहीं सर, मैं आई तो बात ओ भाई, ये बात आपके आज के बाद आप आएंगे भी। इमरान साहब, लेकिन आप ऐसे करें ना, ये सिक्योरिटी वाला बंदा बुलाओ जेड़ा थे यार ड्यूटी ते। राजे साहब को ये कार्ड। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। महंगाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। 8 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान। हाय रे महंगाई, किधर जाए अवाम। जंग और चुनियोट में आटा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी। टोबा टेक्सिंग में भी रोटी 7 रुपए पर मिलने लगी। फैसलाबाद में कीमत अब भी पुरानी, तो नूर मालिकान ने कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 8 की रोटी, 15 का नान। हाय रे महंगाई, किधर जाएं अवाम। जंग और चिनियोट में आटा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। टोबा टैक्सी में भी रोटी 7 रुपए मिलने लगी। फैसलाबाद में पेट्रोल की फराहमी ख्वाब बन गई। पेट्रोल न मिलने पर शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। ताजिर कहते हैं पेट्रोल न मिलने पर कारोबार में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया नोटिस लेकर पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां करें। राना फजील अहमद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता होने के बाद पेट्रोल पंपों से पेट्रोल ही गायब हो गया है। शहरियों तक पेट्रोल की फ्राहमी जो है वो एक ख्वाब नज़र आ रही है। और इसके साथ ही जहां शहरी परेशान हैं पेट्रोल ना मिलने की वजह से, वहीं ताजर तबका है जो है वो भी मुश्किलात से दुचार है। ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता तो हुआ, लेकिन ना आवाम को उसका रिलीफ मिला और ना ही ताजर तबके को रिलीफ मिल सका पेट्रोल सस्ता होने की वजह से, क्योंकि पेट्रोल पंपों वाले जो हैं वो पेट्रोल नहीं दे रहे, जिसके वजह से ताजरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि हमारा जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि वो खुद पेट्रोल पंपों पर जाकर पेट्रोल पंपों को चेक करे कि वहां पर क्या पेट्रोल है या नहीं है। इसके बाद डिपो जो हैं वो भी चेक किए जाएं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि वो इस हवाले से मुतहर्रिक हो जाए और तमाम पेट्रोल पंपों को चेक किया जाए कि आया वहां पर पेट्रोल मौजूद है या नहीं है। क्योंकि ताजर तबका इस वक्त पेट्रोल ना मिलने की वजह से शदीद परेशान है। और अगर ऐसे पेट्रोल पंप जहां पर पेट्रोल है और वो नहीं दे रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी 15 कॉलोनीज को सरबामोहर कर दिया। दफातर सील किए गए, खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यूटिलिटी सर्विस भी नहीं मिलेगी। स्टार सिटी, गालिब सिटी, पाम विलेज, मोन हाउसिंग, जुनेद गार्डन, हुसैना ब्लॉक, नवीद पार्क, टक्कावाला SMD होम्स इजाफी आबादी 121, इब्राहिम वैली इजाफी आबादी 233, उस्मान टाउन, लियाकत टाउन, रुस्तम टाउन और यूसुफ टाउन को सरबामोहर कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद FDA ने गैर कानूनी 15 कॉलोनियों को सरबामोहर कर दिया है। दफातर सील, खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जानिब से एक बार फिर ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है फैसलाबाद में मौजूद गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ। और इस मरहले में फैसलाबाद की 15 गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो हैं उनको सरबामोहर करते हुए उनके दफातर जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इनमें ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के मिल्लत रोड की कॉलोनियाँ शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ झंग रोड और सत्याना रोड की भी मुतअद्दिद कॉलोनियाँ इसमें शामिल हैं। कार्रवाई करते हुए इनके वहाँ पर तामीराती काम को रोक दिया गया है। इनकी जो बैरूनी अहाता की दीवारें हैं वो मुतल्लिका कॉलोनियों की गिरा दी गई हैं। दाखिली रास्ते जो हैं वहाँ पर बनाई गई गैर कानूनी तौर पर सड़कें जो हैं उनको उखाड़ दिया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के मुताबिक इन तमाम कॉलोनियों की खरीदो फरोख्त के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करते हुए मुतल्लिका महकमों को जो है वो मरासले भिजवाए जा रहे हैं कि इन कॉलोनियों को जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो ना दी जाएं और वहाँ पर खरीदो फरोख्त की पाबंदी आयद करते हुए महकमा रेवेन्यू को भी इस हवाले से। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की बाबर फ्लोर मिल ने 22 साल कबल टैक्स की मद में कौमी खजाने को 14 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, मगर रीजनल टैक्स दफ्तर ताहाल केस की तहकीकात को मुकम्मल करने और वसूल करने में नाकाम हो गया है। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, फैसलाबाद में 22 बरस कबल बाबर फ्लोर मिल्स नामी ये एक फैक्ट्री थी जिसकी जानिब से
14 लाख रुपए से जायद का FPR को टैक्स की मद में नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर इस कंपनी के खिलाफ केस किया गया। ताहम अभी 22 बरस इस केस को मुकम्मल हो चुके हैं, मगर ताहाल जो रीजनल टैक्स दफ्तर है वो ना तो इस केस की तहकीकात मुकम्मल कर सका है और ना ही आज तक कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाली इस कंपनी से रेवेन्यू वसूल किया जा सका है। ये इंकिशाफ किया है FPR की जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की ये गफलत सामने आई है कि 1999 या 2000 में ये केस शुरू किया गया। उसके बाद इस फैक्ट्री मालिकान की जानिब से इस फैक्ट्री को बेच दिया गया और उसके बाद ये केस लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा ये अपीलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंचा है, मगर ताहाल इस केस की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि रीजनल टैक्स दफ्तर को 12 दफ़ा इस चीज़ की हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर इस केस को परसू करे, इसकी तहकीकात को मुकम्मल किया जाए और जो कौमी ख़जाने को रेवेन्यू की मद में नुकसान पहुंचाया गया उसको वसूल किया जाए। मगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी जो रीजनल टैक्स दफ्तर के हुक्काम हैं वो इस केस की तहकीकात को मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं और यूं इतना लंबा अरसा कबल कौमी ख़जाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जो उमैर अजमल, बहुत शुक्रिया आपका। अब सरकारी स्कूल असातिज़ा तालीमी इदारे में गायें, भैंसों और आवारा कुत्तों समेत हर तरह के जानवरों को आने से रोकने की ड्यूटी भी देंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल 479 गाहवे समुद्री के हेडमास्टर ने हर रोज 2 असातिज़ा को जानवरों को स्कूल आने से रोकने की ड्यूटियां लगा दी हैं। तहरीरी तौर पर लगाई गई ड्यूटियों से DO सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद को भी आगाह किया गया है। अब सरकारी स्कूल असातिज़ा तालीमी इदारे में गाय, भैंसों और आवारा कुत्तों समेत हर तरह के जानवरों को आने से रोकने की ड्यूटी भी देंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल 479 गाहवे समुद्री की हेडमास्टर ने हर रोज 2 असातिज़ा की जानवरों को स्कूल आने से रोकने की ड्यूटियां लगा दी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, सरकारी स्कूल्स की गैर तदरीसी ड्यूटियों के हवाले से खबरें मंजर आम पर आती रहती हैं। कभी इनको किसी सर्वे पर लगा दिया जाता है, कभी गंतव्य मराकज़ में इनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं और कभी कोरोना के हवाले से करंतना सेंटर्स में असातिज़ा की ड्यूटियां मंजर आम पर आती हैं और इस हवाले से असातिज़ा जो है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाता है। लेकिन अब स्कूल सरबराह की तरफ से एक ऐसा मुरासला भिजवाया गया है DO सेकेंडरी को, जिसमें समुद्री के एक स्कूल की तरफ से कहा गया है कि वो स्कूल से जानवर निकालने के लिए स्कूल में भैंसें, गायें, आवारा कुत्तों के दाखिला पर पाबंदी लगाने के लिए वो असातिज़ा की ड्यूटियां लगा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 असातिज़ा नॉमिनेट किए गए हैं जो कि स्कूल की हिफाजत करेंगे ताकि वहाँ पर कोई जानवर ना आ सके, कोई गायें भैंसें अपनी ना बांध सके और आवारा कुत्ते जो हैं वो भी स्कूल ना आ सके। इस हवाले से बहुत ही अनोखा नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें असातिज़ा की जानवरों को स्कूल आने से रोकने की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिस पर तालीमी हल्के जो हैं उनमें तशवीश का भी इज़हार किया गया है कि ऐसा अगर करना बहुत ज़रूरी था तो क्लास 4 मुलाजमीन की भी कोई ड्यूटियां लगाई जा सकती थी, या अगर स्कूल की 4 दीवारी नामुकम्मल है और ऐसे में शिकायत सामने आती है कि स्कूल में लोगों ने चरागाहें बना रखी हैं, स्कूल में गुजरगाहें बना रखी हैं और लोगों ने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में भी अगर ज़रूरी है तो स्कूल के फ़रोग़ तालीम फंड से चाहिए कि स्कूल की 4 दीवारी को मुकम्मल किया जाए, ना कि असातिज़ा की सिर्फ ये ड्यूटियाँ लगाई जाएँ कि वो रोज़ाना स्कूल आएंगे और स्कूल में जानवरों के आने को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एपका मुलाजमीन का कल से दफातर की तालाबंदी का फैसला। बिग सिटी अलाउंस, हाउस रेंट, बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे में शामिल। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बिल्कुल, एपका यूनियन की जानब से तालाबंदी का फैसला किया गया और उनके जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो रहे। इससे कबल भी उनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा था और अब दोबारा से उनकी जानब से तालाबंदी की जा रही है, जिसमें उनके मुतालबात ये हैं कि यहाँ पर उन्हें बाकायदा तौर पर अलाउंसेस बढ़ाए जाएँ तनख्वाह के हवाले से। जो उनके ट्रैवल अलाउंस बनते हैं, इसके अलावा जो उनके रिहायशी अलाउंस बनते हैं वो भी तनख्वाह के हवाले से किए जाएँ और इसी तरह से उनकी जो बेसिक तनख्वाह उसमें भी इजाफा किया जाए। बुनियादी तनख्वाहों में उनकी शदीद कमी है कि जिसकी वजह से वो अलाउंसेस से महरूम रह जाते हैं और अब उनकी जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बाकी डिपार्टमेंट की तरह जो उनके भी एपका के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ, उनके जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ाए जाएँ और उनके जो बेसिक तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाएँ ताकि वो भी बाकी जो यहाँ पर मुलाजमीन बाकी महकमों के उनके स्केल के बराबर है, उन्हें उनके स्केल के बराबर तनख्वाह दी जाए, वरना वो तालाबंदी करेंगे, वरना वो किसी भी दफ्तर का काम नहीं होने देंगे। और इस हवाले से
जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट चोरी डकैती की वारदातों में 35% कमी वाक़ई हुई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पहले 5 माह चोरी की 32 जबकि रवां साल 22 केस रिपोर्ट हुए। डीपीओ कहते हैं साल के आगाज से ही सर्च ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीला अपडेट करेंगे। अच्छा बिल्कुल, गुज़श्ता 3 सालों के दौरान चिन्योट में चोरी और डकैती के वाक़यात में कमी वाक़या हुई है और 35% कमी गुज़श्ता साल की निस्बत रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से अगर चिन्योट पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक बात की जाए तो गुज़श्ता साल पहले 5 माह में है 32 जो डकैती और चोरी की वारदातें रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर उससे कबल एक साल बात की जाए तो 40 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातें रिकॉर्ड की गई, लेकिन इस साल के पहले 5 माह में सिर्फ 22 चोरी और डकैती की वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। और इस हवाले से डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि इससे मजीद फीसद में कमी वाक़या हो ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और इस हवाले से उनका कहना है कि साल के आगाज़ से ही तमाम थानों के SHOs को ये खुसूसी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई थी कि सर्च ऑपरेशन रात गए तक जारी रखने और जहाँ जहाँ पर कार्रवाइयाँ हो उनको मुकम्मल तौर पर सर अंजाम देना। और इस हवाले से जो भी चोर और डकैत गैंग है उनके हवाले से डाटा साल के आगाज़ से मुरतब किया गया था और कोशिश की गई थी कि जहाँ भी डकैती वारदात हो उसके मंतकी अंजाम तक उन डकैतों को पहुँचाया जाए। और इसी हवाले से देखा गया कि पहले 5 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 35% कम। आगे बढ़ेंगे। खबर ये कि थाना खुर्लेवाला के इलाका 108 में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर प्रॉपर्टी डीलर का छुरी से गला काट कर कत्ल करने का मामला। पुलिस ने 2 नामजद समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। वुरसा की आला हुकाम से नोटिस की अपील। आपको आगाह कर रहे हैं, थाना कुड़ियांवाला के इलाके 108 में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर प्रॉपर्टी डीलर का छुरी से गला काट कर कत्ल करने का मामला। पुलिस ने 2 नामजद में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वुरसा के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। हम वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। SOPs पर अमल न करने वालों को जुर्माने और दुकानें सील कर दी गईं। ब्यूरो चीफ टोबाटेक सिंह राना आजर नूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, CO MC टोबाटेक सिंह जाहिद सलीम के दौरा की से बात करेंगे। जाहिद साहब, आज आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर भी चेक किए, मार्केटें चेक की, दुकानें चेक की, SOPs क्लास की, कितने जुर्माने किए आपने और लोगों को क्या आपने विदेश दिया? जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक हम डेली बेसिस पे इसको विजिट कर रहे हैं ताकि हम जो SOPs हैं उसके मुताबिक इंश्योर करें कि लोग जो हैं उसके मुताबिक अमल करें, शॉपकीपर भी और कस्टमर भी। उसी सिलसिले में निकले हैं। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उधर भी विजिट किया है, उधर भी इंश्योर किया है। फिर जो शॉपकीपर या शॉप वाले उसकी प्रॉपर SOPs की जो मतलब नहीं उस पर अमल कर रहे उसको हमने फाइन्स भी किए हैं और तकरीबन 15,000 तक हमने फाइन कर दी है और लोगों को वार्न कर दी है और उनको अवेयरनेस दे दी है कि कोई भी SOP के खिलाफ जो है वो शॉप खुली तो इसके बाद हम उसको सील कर देंगे, फाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल सील कर देंगे। अगर CMC ने कहा कि उनका केस होता है मुख्तलिफ स्टोर पर चेक करके लोगों से कहा गया कि वो इस पर एहतियात बनेगा कि जो SOP उनका कि तमाम जो दुकानदार हैं वो खुद मास्क पहने और जो भी कागज हो सका उनका जो भी लोग जो हैं अगर दुकानदार SOP फॉलो करेंगे तो ठीक है। उनका जो भी दुकानदार जंग टोबा रोड की सुनी गई चूना भटिया से थाना सदर चौक तक सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मुजमुई तौर पर 1 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा, अच्छी खबर सामने आई है। बिल्कुल, झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि एक तवील अरसे के बाद तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है। तकरीबन जो नब से नई हुकूमत आई थी तो झंग में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका था। तमाम झंग में अब टोबा रोड की तामीर शुरू कर दी गई है। झंग इंतजामिया के मुताबिक MPA मौलाना मुआविया आजम की ये ग्रांट है जिसकी मदद से झंग में टोबा रोड की तामीर मुकम्मल की जाएगी। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे चूना भटिया चौक से लेकर थाना सदर चौक तक सड़क जो है वो दोनों जानब से टूट फूट का शिकार थी। यही वो सड़क थी जहां से गुजरते हुए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सिटी 41 ने भी मतलब बार निशानदेही की यहाँ पर पानी जमा रहता है और यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं तो उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तमाम अभी इस सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। थाना सदर चौक तक ये सड़क तमीर की जाएगी और इसके साथ साथ सैटेलाइट टाउन के मुकाम पर भी एक सड़क है उसको तामीर किया जाएगा, जिसके लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए से तकरीबन ये 3 सड़कें मुकम्मल होंगी। ये अहम सड़क थी चूना भटिया चौक से लेकर थाना सदर चौक तक, जिसकी तामीर मुकम्मल होने से आवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी। तमाम शहरियों का ये कहना है कि दीगर भी अहम तरीन शाहराएं हैं उनके लिए भी मजीद फंड्स मंजूर किए जाएं और उनकी तामीर मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लॉकडाउन में नरमी हुई मगर इकबाल स्टेडियम के अतराफ सिंदबाद और फन लैंड के वर्कर्स परेशान हैं।
علی रजा अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अकबाल स्टेडियम के अतराफ दो बड़े प्ले लैंड है, सिंधबाद और फर्लैंड, जिनके वर्कर परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि SOPs के मुताबिक जो है वो प्ले लैंड को खोल दिया जाए। फैमिली और जहाँ पे लोग आते थे तो उनके घर का चूल्हा चलता था, लेकिन अब वो काफ़ी परेशान है। कुछ वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे जो आने वाले वो भी यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी परेशानी है वर्कर्स को यहाँ के आसपास? यहाँ के लोग जो काम करने वाले, स्पेशली जिनमें ये जो बेचारे लेबर तबका लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनके चूल्हे जो से हैं, ये जब से लॉकडाउन शुरू है ये उस वक्त से बंद है। इनके लिए बिल्कुल भी कोई मतलब रोजगार नहीं है, बिल्कुल ये जीरो हो चुके हैं। कोई इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं, लाइक इनके लिए इनकम जो सी है वो जीरो हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट को इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने बाजार मार्केट्स ओपन किए हैं, उनके SOPs तैयार किए हैं, SOPs बनाए हैं, फिर उनको मेक श्योर करते हैं कि वो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। इनके लिए भी SOPs बनने चाहिए ताकि उसके मुताबिक ये भी अपने रोजगार को देख सकें, अपने घर वाले अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनके लिए एक SOPs तैयार करें, जिस तरह भी गवर्नमेंट एक देखती है कि सूटेबल SOPs हैं, इनके लिए तैयार किए जाएँ ताकि ये भी हम लोगों की तरह रूटीन में आ सके, लोगों की तरह रूटीन में आ सके। ये लोग अब इस कदर जरूरतमंद हो चुके हैं कि लोगों से अब अपनी जरूरत के लिए सवाल करना शुरू कर दिया, अपनी जॉब से हटके। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे लोग काम करते हैं तो वो काफ़ी परेशानी, यहाँ पे वर्कर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कितनी परेशानी है यहाँ पे? पहले यहाँ पे रश होता था, अब इस तरीके से लोग नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, अब खाली हो चुका है और कोई काम नहीं है, इधर फारग हो चुके हैं। हमारे घरों का जो बुरा हाल है, बच्चों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, सारी परेशानी है। अगर ये चलेंगे तो हमारे घर चलेंगे ना, हमारे चूल्हे चलेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अगर ये प्लेलैंड एरिया चलेगा तो इनके घर के चूल्हे चलेंगे। ये आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।